Good evening, everyone, and welcome back to the weekly webinar of Rajalakshmi Solutions Private Limited. Yes. Hello, am I audible? Mr. Bhagwati, can you just confirm me? Am I audible? Yes, you are audible. Right, thank you so much. So, hearty welcome to all the spectators here. Well, today's topic is all about import payments from Excel to Tally Prime. Wow, it's really a wonderful feature. Yes, before getting into today's topic, let's go for the brief introduction of Rajalakshmi Solutions Private Limited, what we do and what are the services we provide. So basically, we are into Tally Prime, an accounting software, and we are into SAP Business One, a key for every business solutions. And we are part of Matrix 24, a CRM, customer relationship management software. And we are part of Skill India, a government project which is specifically concerned for the employment and education of students. Well, apart from this, we are part of Tally on Cloud, a specific cloud setup or a specific cloud facilitator to all the clients as of now, which is in high demand. And apart from this, we are into HR services as well as digital marketing services, the highly demanded role as well. Yes, apart from this, what we do, I took all about softwares and the services. Apart from this, what we do in the software services. Basically, after sales, we are into support, we are into customization, we are into implementation, and along with all these things, we are into advisory services. Advisory services is nothing but we provide the complete support and the service to choose the right software, to choose the right system, to organize the system in the right way. So this is also part of RSPL. So altogetherly, the Rajalakshmi Solutions Private Limited work 24/7 into support as well as sales in terms of software as well as services. Yes, so this is the right time for you to focus on the different offers, because Rajalakshmi Solutions is providing continuously different offers into different segments. If you are planning to streamline your business, or if you're planning to organize your system of an organization, do connect us for the complete support and the services. Well, so apart from this, now I would wish to give certain instructions onto the webinar. So basically, this webinar is getting recorded, and this recording will be posted into our YouTube channel and all other social media sites. So for that, all you need to do is to subscribe our YouTube channel and follow all our social media channels, such that you will come to know about the offers or every movement of Rajalakshmi Solutions Private Limited. And if you have any doubts or any questions, request you to please give a space and respect to the speakers here, and then let us have a discussion on today's topic if you have any doubts or any questions. By the meantime, if you really wanted to present the question in between itself, request you to please update your comments into the comment box. We will make sure that we will focus onto the comment box and we will read out the question, or we will support you through some other video specifically onto the question and answer session. Yes, so that's it from my end. So here the speakers are ready. So let us welcome the speakers and move ahead on to today's topic and the training. Yes, so Ms. Divya, are you here? Yes, ma'am. Hi Divya, hearty welcome to the session. Yes, hello ma'am. And Mrs. Diksha, are you here? Mrs. Diksha, are you here? Yes, ma'am. Hello. Hi Diksha, hearty welcome to the weekly webinar session. Thank you. Yes, we have Mr. Bhagwati here, the resource person. So Mr. Bhagwati, are you here? Yes, Deepa, good afternoon. I am here. Hi, Mr. Bhagwati. Thank you so much for joining us. Thank you. Well, so now it's the part of our webinar. I think really excited to know how the Excel things can be imported to Tally Prime. Well, before entering to the topic, let me again interfere here. That is about request everyone to update yourself to Tally Prime. If you are onto the Tally ERP line, it's very essential that you are supposed to convert yourself to Tally Prime, because the features
features specifically onto Tally, everything will be in accordance to the Tally Prime, not on Tally ERP9. So there might be scenarios that you will not be able to use many flexibilities and the features. So request you to connect us. We are running different services just to comfort all the customers. We have just to update your Tally ERP9 to Tally Prime. So do connect us to convert yourself from Tally ERP9 to Tally Prime. And this is the right time. Choose the right advantage as well. So yes, now it's over to Ms. Divya and Mrs. Diksha. Request you to please proceed ahead onto your presentation and the live demo. It's over to you. Thank you so much, ma'am. Introduce yourself and then move ahead onto the topic. Hello everyone. Good evening to all. Welcome to our today's session. This is Divya here presenting Raj Lakshmi Solutions Private Limited. So our today's topic is import payment from Excel to Tally. This is our complete Raj Lakshmi team. So let's start today's session. Import payment from Excel to Tally Prime. So first we discuss this with point wise. First is with this add-on you can import transaction from Excel to Tally. आप इस add-on के थ्रू अपने पेमेंट वाउचर या अदर इन्वेंट्री वाउचर्स लाइक सेल, परचेज, रिसिप्ट, कॉन्ट्रा, जर्नल, ये सभी वाउचर्स आप इंपोर्ट कर सकते हैं एक्सेल से टैली में. सेकेंड, द डिटेल्स इन एक्सेल शुड बी इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट. जो आपकी डिटेल्स होंगी वो आपकी एक प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट में होगी. थर्ड, इंपोर्ट पेमेंट एक्सेल टू टैली कंपैटिबल विद टैली प्राइम. जो हमारी पेमेंट के या अदर इन्वेंट्री वाउचर्स हैं वो कंपैटिबल है टू टैली प्राइम 2.0 में. फोर्थ, इट सेव्स आवर टाइम. ये हमारे टाइम को सेव करता है. समटाइम्स हमारी वर्क में एंट्रीज होती हैं जिसके थ्रू हमारे लिए डेलीज में वर्क करना मैनुअली बहुत मुश्किल हो जाता है. तो इस एड ऑन को यूज़ करने का बेनिफिट ये है कि आप अपना डाटा जो है वो एक्सेल में मेंटेन करके इजीली टैली में इंपोर्ट कर सकते हो जस्ट सिंगल क्लिक के थ्रू, जिसके थ्रू आपका टाइम सेव होता है. सो दैट्स इट फ्रॉम माय एंड. थैंक यू सो मच टू एवरीवन. नाउ इट्स ओवर टू यू दीपा मैम. थैंक यू. Thank you so much, Diksha. It was really wonderful presentation. But yes, I must say this is a very simple and small topic, which is very good feature. बहुत सारे लोगों को इस फीचर्स के बारे में पता नहीं है. तो बस हम राजलक्ष्मी सॉल्यूशंस की तरफ से यही कोशिश हमारा है कि छोटे फीचर्स को भी हम दिखाए और टैली में जो फ्लेक्सिबिलिटीज है उसको अगर आप यूज करोगे तो उससे जरूर आपका टाइम सेव हो जाएगा. साथ के साथ आप बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल हो जाओगे. तो यही एक कंसर्न है और कुछ नहीं. सो थैंक यू दीक्षा एंड नाउ इट्स ओवर टू दिव्या फॉर द लाइव प्रेजेंटेशन. Okay. Thank you, Deepa ma'am. So, good evening, all of you. Myself, Diksha Gaikwad. I am representing Raj Lakshmi Solutions Private Limited. Today, I will show you how to import voucher to Tally Prime practically. So now, I am sharing my screen. My screen is visible, ma'am. Hello. Yes, Diksha, you Yes, can it's continue. visible, Divya. Okay, ma'am. Move ahead. पहले तो मैं अपना टैली प्राइम ओपन कर लेती हूँ. टैली इंपोर्ट वाउचर्स में कैसे है कि हम लोग सिर्फ पेमेंट ही नहीं द वाउचर्स भी इंपोर्ट कर सकते हैं. जैसे कि कॉन्ट्रा एंट्रीज हो गई या फिर क्रेडिट नोट हो गया, डेबिट नोट हो गया, सेल्स की एंट्रीज हो गई, परचेज की एंट्रीज हो गई. ये भी हम लोग एक्सेल के थ्रू टैली में इंपोर्ट कर सकते हैं, जिसका हम लोग को फायदा ये है कि जो भी बल्क में एंट्रीज आपकी रहेगी वो ऑटोमेटिकली टैली के अंदर इनबिल्ट हो जाएगी. मैं मेरी कंपनी लोड कर लेती हूँ जहाँ पे मैंने अपना कंपनी सेव कर रखा है.
वहाँ का पाथ कॉपी करती हूँ। पहले तो हमें अपना कस्टमाइज टूल टैली में स्टोर कर लेना है, जैसे कि इंस्टॉल कर लेना है, क्योंकि ये जो टूल है, ये टूल आप जब भी डालते हो तो आपका एक्सेल का जो भी फॉर्मेट रहेगा वो टैली के अंदर एंट्री टू इंपोर्ट हो जाएगा। टूल इंस्टॉल करने के लिए मैं F1 प्रेस कर रही हूँ। TDL एंड एड-ऑन्स में जा रही हूँ और इंस्टॉल करने के लिए F4 का बटन दिया है वो प्रेस कर रही हूँ। फर्स्ट मुझे बता रहा है लोड सिलेक्टेड TDL फाइल ऑन स्टार्टअप। स्टार्टअप के लिए आपको यहाँ पे हमेशा यस रखना है। जहाँ पे मैंने अपना TDL फाइल रखा हो मुझे कॉपी करना है, उसके लिए मैं जहाँ पे टूल रखा है वही फोल्डर कॉपी कर लेती हूँ, एड्रेस कॉपी कर लेती हूँ और पेस्ट कर रही हूँ। मेरा टूल यहाँ पे शो हो रहा है, सिलेक्ट कर लेती हूँ और लोड कर देती हूँ। टूल है वो हर एक कंपनी में एनेबल हो सकता है, पर जिस कंपनी में आपको एंट्रीज इंपोर्ट करनी है वही कंपनी में टूल चलने के लिए आपको वो टूल अनेबल करने के लिए F6 का बटन दिया गया है और आपको यहाँ पे टूल अनेबल कर देना है। एस्केप करके बाहर आने के बाद आपको गेटवे ऑफ टैली पे एक नया मेनू दिखेगा जहाँ पे इंपोर्ट मेनू करके आया हुआ है। तो पहले हम लोग देख लेते हैं अपना एक्सेल फाइल कैसे मेंटेन करना है। आप यहाँ पे देख सकते हो मेरे कुछ कॉलम्स बनाए हुए हैं, जैसे कि वाउचर टाइप नेम। वाउचर टाइप नेम के अंदर आप जो भी वाउचर इंपोर्ट करना चाहते हैं वही वाउचर का नाम, जैसे अपने टैली के अंदर मेंटेन किया हुआ है वाउचर का नाम, वो यहाँ पे आपको मेंशन करना है। उसके बाद वाउचर नंबर आप टैली में जैसे मेंटेन करते हो वही आपको यहाँ पे बताना है। वाउचर डेट, वाउचर नरेशन, लेजर नेम में आपका टैली के अंदर जो आपने लेजर मेंटेन किए हुए हैं एग्जैक्टली सेम नेम के लेजर्स का नाम यहाँ पे होना जरूरी है। उसके बाद लेजर अमाउंट, डेबिट एंड क्रेडिट, बिल टाइप के अंदर जैसे कि हम लोग कोई नया पेमेंट करते हैं तो हम लोग नया रेफरेंस लेंगे, न्यू रेफरेंस, या फिर कोई बिल के अगेंस्ट हम लोग पेमेंट करते हैं तो वहाँ पे अगेन रेफरेंस आएगा। उसके बाद बिल नेम, ड्यू डेट, फेवरिंग नंबर, नेम, ट्रांजैक्शन टाइप, इंस्ट्रूमेंट नंबर, इंस्ट्रूमेंट डेट, क्रॉस इंस्ट्रूमेंट यूजिंग। लास्ट के ये जो 5 कॉलम्स है ये सारे आपके बैंक रिलेटेड कॉलम्स है। जैसे कि आप पेमेंट चेक करते हो तो ये सारे आप डिटेल यहाँ पे डालते हो तो एंट्रीज में ये सारे बैंक के डिटेल्स इंपोर्ट हो सकते हैं। तो फिर देखते हैं अभी टैली के अंदर एक्सेल कैसे इंपोर्ट हो सकता है। जैसे कि मैंने बताया इंपोर्ट मेनू के अंदर सेट एक्सेल पाथ का बटन दिया गया है जिसको मैं प्रेस कर रही हूँ। तो यहाँ पे मुझे लोकेशन ऑफ फाइल पूछ रहा है, जहाँ पे मैंने अपना एक्सेल फाइल रखा है वहाँ का पाथ मुझे फाइल के अंदर देना है। उसके बाद मुझे फाइल नेम पूछ रहा है, जैसे कि नोट में लिखा गया है मेंशन द फाइल नेम विद एक्सटेंशन। तो जो भी मेरा रहेगा वो मुझे एक्सटेंशन के साथ कॉपी करना है। मैंने कॉपी कर लिया और टैली के अंदर पेस्ट कर दिया। फिर पूछ रहा है शीट नेम यानी आप जो भी शीट एक्सेल शीट मेंटेन करते हो उसका नीचे आपको शीट नेम दिया जाता है। वो शीट आप मेंटेन करते हो उसके नाम का अब नाम आपको कॉपी कर लेना है। मैंने कॉपी कर लिया, टैली के अंदर पेस्ट कर दिया और एंटर करके सेव कर दिया। इसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पे एक्सेल के अंदर मैंने 3 एंट्रीज बनाई हुई है, 101, 102, 03। ओके, तो पहले अभी चलो हम लोग देख लेते हैं ये टैली के अंदर एंट्रीज कैसे इंपोर्ट होने वाली है। जब भी आप इंपोर्ट करेंगे तो आपको आपका एक्सेल क्लोज कर देना है।
आपको पेमेंट वाउचर्स में जाना है। यहाँ पे आपको पॉपअप आएगा इंपोर्ट पेमेंट वाउचर्स। आपको एंट्री इंपोर्ट करनी है तो आपको यहाँ पे यस करना है। यस करने के बाद एक प्रोसेसर आएगा जो आपको आइडेंटिफाई करेगा कि आपका एंट्री इंपोर्ट हो रहा है। चलो चेक कर लेते हैं ये एंट्रीज यहाँ पे इंपोर्ट हुई कि नहीं। अभी आप देख सकते हैं एक्सेल के अंदर हम लोगों ने 3 एंट्रीज मेंटेन की थी, पर आपको यहाँ पे पीरियड डालने के बाद 2 ही एंट्री दिख रही है। तो एंट्री इंपोर्ट क्यों नहीं हुई वो चेक करने के लिए कंट्रोल एन प्रेस कर लेते हैं। यहाँ पे आपको एरर दे रहा है लेजर ट्रांसपोर्ट एक्सपेंस डज नॉट एग्जिस्ट, यानी एक्सेल आप देखोगे तो ट्रांसपोर्ट एक्सपेंस का जो लेजर है वो मैंने टैली के अंदर क्रिएट नहीं किया हुआ है, इसके वजह से थर्ड एंट्री इंपोर्ट नहीं हुई है। अभी क्या करना है, टैली के अंदर पहले तो लेजर क्रिएट कर लेना है। क्रिएट में जाना है, लेजर में जाना है, और जैसे कि पहले मैंने आपको बताया आपका लेजर का नाम टैली के साथ एक्सेल में जो नाम आपने लेजर का लिखा हुआ है वो टैली के लेजर के साथ मैच होना जरूरी है। तो हम क्या करेंगे, ट्रांसपोर्ट एक्सपेंस ये जो सेल है जिस सेल में हम लोगों ने नाम लिखा हुआ है वो सेल को एडिट करेंगे। एडिट करने के लिए F2 का बटन प्रेस कर सकते हो, जैसे कि आपको वो कर्सर वहां पे ब्लिंक होगा। वही नाम कॉपी कर लेना है और पेस्ट कर देना है। अभी ये हम लोगों का ट्रांसपोर्ट एक्सपेंस होने की वजह से हम लोगों को ग्रुप भी एक्सपेंस का लेना पड़ेगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। और मैं ये लेजर सेव कर देती हूँ। तो अभी हम लोग चेक कर लेते हैं कि ये एंट्री इंपोर्ट होती है कि नहीं। पहले जैसे मैंने बताया इंपोर्ट करते टाइम आपको आपका एक्सेल क्लोज कर, मैंने ये एक्सेल क्लोज कर दिया। फिर से इंपोर्ट मेनू में जाना है, पेमेंट वाउचर्स में जाना है। आपको जैसे पहले पॉपअप देता था सेम पॉपअप को इंपोर्ट पेमेंट वाउचर के लिए पूछेगा। यस कर दिया। प्रोसेसर आया, इसका मतलब आपका एंट्री इंपोर्ट हो रहा है। एस्केप करके एंट्री चेक कर लेते हैं, पीरियड डाल देते हैं। अभी यहाँ पे आपको आपका 3 एंट्री दिख रहा है, जैसे कि मैंने पहले बताया एक्सेल के अंदर 3 एंट्रीज मेंटेन की थी, तो यहाँ पे आपका 3 एंट्री इंपोर्ट हो चुका है। चलो एंट्रीज चेक कर लेते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो एक्सेल के अंदर हम लोगों ने पेमेंट वाउचर डाला था, तो पेमेंट का वाउचर दिख रहा है, वाउचर का नाम दिख रहा है, डेट दिख रहा है, बैंक का नाम दिख रहा है, पार्टी मास्टर दिख रहा है, अमाउंट शो हो रहा है, रेफरेंस भी दिख रहा है, बिल नेम दिख रहा है, अमाउंट दिख रहा है। अभी आप देख सकते हो जो डिटेल्स बैंक के हम लोगों ने एक्सेल के अंदर डाले हुए हैं वो सारे यहाँ पे आपको शो होंगे। नरेशन जो हम लोगों ने डाला था वो भी यहाँ पे आ गया है। जो भी डिटेल्स एक्सेल के अंदर हम लोगों ने डाला था वो सारा आपको यहाँ जाएगा। इसके जैसा हम लोग पेमेंट ही नहीं तो अदर वाउचर्स भी इंपोर्ट कर सकते हैं, जैसे कि कॉन्ट्रा एंट्री हो गया, क्रेडिट डेबिट नोट हो गया, या फिर सेल्स परचेज के एंट्रीज हो गई। ये सारे एंट्रीज, जर्नल एंट्रीज हो गई, ये सारे एंट्रीज आप टैली के अंदर इंपोर्ट कर सकते हैं इजीली। सो थैंक यू, इट्स डन फ्रॉम माय साइड। इट्स ओवर टू यू दीपा मैम। Thank you, Diksha and Divya. It's a very nice presentation from your side. So मैं ये जरूर बोलूँगा, myself is Bhagwati Bhandaria. I am from Rajalakshmi Solutions Private Limited. So today's session is a payment import. Just we saw the payment import, how to import the payment in the Tally software in Tally Prime.
आज की डेट में बहुत सी जगह हम लोगों ने एक चीज़ों को देखा है, बहुत सी ज़्यादा लोगों की डिमांड होती है कि दे आर यूजिंग ए सिंगल यूजर, दे आर मेंटेनिंग द डेटा इन द एक्सेल in terms of the many of the organization, individual organization, many of the chartered accountant firms, mostly chartered accountant firm में ये देखा गया है कि people are using Excel mostly. Okay, they are putting the transaction in the Excel like sales, purchase, receipt, payment, various type of transactions they are putting in the Excels. तो जो Excel के अंदर में जो ट्रांजेक्शन वो पुट कर रहे हैं वो सभी ट्रांजेक्शंस अब फिर चार्टर्ड अकाउंटेंट के ऑफिस में आकर के या आपके ऑफिस में आकर के अगर फिर से उसको करना पड़े, देयर इज ए टू मच बिग टास्क. सो वो टास्क के लिए हमें अलग से काफी एफर्ट डालनी होती है और हमें जो एरर्स की संभावनाएं बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि अगर मैं मैनुअल को एंट्री करने जाऊंगा तो डेफिनेटली मुझे कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि मैं कहीं ना कहीं कुछ चीजों को मिस्टेक करूं. दिस ये ह्यूमन एरर आता है कि अगर मुझे 10,000 लिखना है, हो सकता है मैंने 50 लगा दिए तो 1 लाख रुपीज हो जाएगा. तो ह्यूमन एरर की चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाती है. और जो इतने ज़्यादा ऑलरेडी इंफॉर्मेशन होते हैं ट्रांजेक्शन में, अकाउंट्स में, जो हर एक ट्रांजेक्शन को मैनुअली फीड करना इज अ बिग टास्क एंड उनको सेम टाइप में मेंटेन करना अगेन ए बिग चैलेंज. तो इसके लिए हम लोगों ने ये टूल्स डेवलप किया है. आज हमने आपको जो दिखाया है वो पेमेंट इंपोर्ट वाउचर दिखाया है. अब पेमेंट इंपोर्ट वाउचर में भी हमने कुछ स्पेसिफिक कॉलम लिए हैं. नाउ इट्स डिपेंड ऑन यू अगेन कि आपको इतने कॉलम नहीं चाहिए. मे बी आप कॉस्ट सेंटर यूज करते हैं तो शायद आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन भी चाहिए कि हाउ टू मेंटेन द कॉस्ट सेंटर विद इन द एक्सेल एंड हाउ टू इंपोर्ट द डेटा. तो वेरियस टाइप ऑफ रिक्वायरमेंट्स आती है, वेरियस टाइप ऑफ चीज़ों की जरूरत पड़ सकती है आपको टाइम टू टाइम. और वो जो जरूरत आपको टाइम टू टाइम पड़ रही है उसको आपको कैसे यूज करना है टैली में, और उसके अकॉर्डिंग आप अपना एक्सेल डेवलपमेंट करवा सकते हो, टूल्स अपना डेवलप करवा सकते हो जिसके थ्रू आप मेंटेन एक्सेल में डेटा मेंटेन करोगे. यू विल इंपोर्ट दैट डेटा इन द टैली ऑन द सिंगल क्लिक. सेम तरीके से आप सेल्स के वाउचर्स हैं, you are doing the sales in the various type of the various type of the locations and you are maintaining the data in terms of the Excels. Or in terms of the chartered accountant, mostly small organizations are just putting the data in the Excel file, and chartered accountant is importing that data. They are putting the entry transaction in the manual way. So that time you can save this to save your times and your money and your effort. You can also save your human errors कि आप कैसे इसमें एरर सेव कर सकते हो, कितना आपका टाइम सेव हो सकता है, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा इन चीज़ों को विदाउट एनी एफर्ट के, विदाउट एनी टाइम इंगेज किए हुए आप इंपोर्ट कर पाओगे. जब आप इसमें ट्रांजेक्शन जो भी आप इंपोर्ट करोगे वो ऑटोमेटिक एक बार में हो जाता है. जैसा आपको दिव्यांग दीक्षा ने बताया कि जो ट्रांजेक्शन मेरे मास्टर लेजर क्रिएट होने चाहिए, आप अगर ऐसा टूल चाहते हो कि अगर मेरे ट्रांजेक्शन जो है, मेरा कोई नया मास्टर अगर आ गया है ट्रांजेक्शन्स में, तो वो ट्रांजेक्शन्स मैं विदाउट मास्टर क्रिएट किए हुए भी कर पाऊँ. दिस इज ऑल्सो पॉसिबल. ये भी आप अपने हिसाब से कस्टमाइज करवा सकते हैं. तो आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आज की डेट में टैली कस्टमाइज हो सकता है. किसी भी लेवल पे आप कस्टमाइज करना चाहें आप कर सकते हैं. कोई भी टाइप का यूटिलिटी आप इंपोर्ट करना चाहें आप इंपोर्ट कर पाएंगे. तो इन सब चीज़ों के लिए वी हैव ए गुड डेवलपमेंट टीम. सो आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप डिस्कस कर सकते हैं. और बाकी के जो GSTR के रिपोर्ट्स हैं, GST के रिपोर्ट्स हैं या TDS के रिपोर्ट हैं या अदर फाइनेंशियल बिल रिसीवेबल, बिल पेबल या आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट, ये सभी रिपोर्ट चूंकि टैली टूल्स के अंदर ऑटोमेटिक आपको मिल जाते हैं. तो आपको सिंपली एक ट्रांजेक्शन इंपोर्ट किया, अकॉर्डिंग दैट आपको सभी टूल्स ऑटोमेटिकली आपके इंपोर्ट हो गए, ऑटोमेटिकली आपको रिपोर्ट्स यहाँ से जनरेट हो गए. तो यू हैव नो नीड टू पुट द अगेन एंड अगेन अपार्ट इन द टर्म्स ऑफ द ट्रांजेक्शन एंट्री, और इससे आपका काफ़ी टाइम सेव हो जाता है. एंड यू कैन यूज ऑल द रिपोर्ट, ऑल द फीचर अकॉर्डिंग द टैली सॉफ्टवेयर. सो दिस इज अ वेरी यूजफुल टूल्स. मैं आपको यही बोलूँगा कि this is a very useful tools and you can take the advantage. You can save your time, you can save your errors, and you can enjoy with these tools.
So this is from my side today, and इसके अलावा अगर आपको कोई भी नए टूल्स की जरूरत होती है या कोई भी ट्रेनिंग की जरूरत है, यू कैन सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। जो यूट्यूब चैनल का हमने ऑलरेडी आपको जनरल चैट में, जूम के चैट में डाल दिया है। यू कैन क्लिक ऑन दैट यूट्यूब चैनल लिंक एंड यू कैन सब्सक्राइब दैट चैनल। यू कैन use the lot of training videos are available over there, so you can learn lot of things in particular that videos, and इसके थ्रू आप अपना नॉलेज गेन कर सकते हैं। और अपकमिंग टाइम जितने भी हमारे जो सेशंस होते हैं वो सभी सेशंस हम लोग टाइम टू टाइम अपलोड कर रहे हैं। तो आप यूट्यूब चैनल अगर सब्सक्राइब करके रखोगे तो यू विल गेट द बेनिफिट ऑफ द ऑल दिस इंफॉर्मेशन एंड अपकमिंग वीडियोज। एंड इसके अलावा आपको कोई भी सजेशंस है, इफ यू हैव एनी सजेशंस, इफ यू हैव एनी एडवाइस, यू कैन ऑल्सो एडवाइस अस कि आपको कौन से टॉपिक्स पे आपको सेशन होने चाहिए और आपके रिक्वायर्ड टॉपिक्स क्या हैं। तो आपके जो रिक्वायरमेंट के जो टॉपिक हमारे पास आते हैं उसके अकॉर्डिंग ही हम आपके सेशन अरेंज कर रहे हैं। तो ऑल दिस सेशंस वी आर अरेंजिंग अकॉर्डिंग द कस्टमर डिमांड। तो आपके कोई भी डिमांडेड टॉपिक हैं, वो टॉपिक को आप अपने अकाउंट मैनेजर के साथ कम्युनिकेट कीजिए, जो आज के डेट में आपके साथ राजलक्ष्मी में कनेक्टेड हैं, या आप हमें मेल कर सकते हैं, आप हमें फ़ोन कर सकते हैं। फ़ोन की डिटेल्स एंड मेल की डिटेल्स आपके चैट में हैं, या आप हमें चैट के थ्रू, राजलक्ष्मी वेबसाइट की चैट बोर्ड के थ्रू भी आप हमें मैसेज डाल सकते हैं। अकॉर्डिंग दैट हम लोग जितनी ज़्यादा हॉटेस्ट टॉपिक आता है, जितनी ज़्यादा डिमांड जिस टॉपिक की होती है, उस टॉपिक को हम लोग कवर करते हैं अपकमिंग टाइम जो सेशंस होते हैं उसमें हम लोग वो कवर करते हैं। तो ऑल थिंग्स इज अकॉर्डिंग योर रिक्वायरमेंट, अकॉर्डिंग योर थॉट्स, एंड यू कैन गेट द बेनिफिट्स फ्रॉम राजलक्ष्मी। इसके अलावा कोई भी क्वेश्चंस या कोई भी डाउट्स अगर आपके हैं तो आप अपने अकाउंट मैनेजर के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, आप हमें मेल कर सकते हैं और मैसेज कर सकते हैं और फोन कर सकते हैं। तो दैट्स इट फ्रॉम टुडे सेशंस। एनीथिंग इफ यू हैव, तो यू कैन कनेक्ट विथ योर अकाउंट मैनेजर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। बाय बाय। थैंक यू।